Good evening, everyone. I am Twinkle Jain. Welcome to the Skill Veda talk show organized by Skill Veda. Good Skill Veda is evening. your partner in skill development, offering a wide range of webinars, offline workshops, short-term courses, training programs, and panel discussion designed to help you unlock your potential and achieve your career goals. In today's talk show on CBSE's dual board exam system, we will be discussing the implications, benefits, and challenges of this new assessment framework. We are thrilled to have you join us for this exciting learning journey. A special welcome to our esteemed trainer, Ms. Seema Naidu, Director of Earson's English School. She is an educator with a passion of excellence, with more than 30 years of experience to share her knowledge and insights. Welcome, Ms. Naidu. Thank you, Twinkle. Introduce me very क्या बोलना चाहिए बड़े सुंदर शब्दों में बोला. Thank you very much. Thank you. First of all, I thanks Twinkle you given this opportunity me to say something, talk with my great principals are present over here, and good evening to all present here. Jain sir, Ahmed sir, and Jacqueline and my teachers are there. So before I start this, little I want to share 2-3 things. One, जैन सर हमारे लिए भीष्म पितामह हैं, हमारे इंसाइक्लोपीडिया हैं, एंड 21st को सर टर्न होने जा रहे हैं 92, एंड स्टिल ही इज वर्किंग. कई घंटे खड़े रह के अभी भी लेक्चर्स लेते हैं सर, एंड ऑलवेज अवेलेबल. आप कहीं पे भी अटकते हो तो उनको कोई बुक खोलनी नहीं पड़ती, जस्ट ही स्टार्ट, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो. So it is like that, and thank you very much. So let me start. Thank Yes, you. please. Thank you. Please start now. Yeah, Pratik, screen share कर दे बेटा. Yeah. So, shall we start? Yeah, please. Yes, please. Yes. Today's topic is for 2 board examination scheme of CBSE for the session 2025 and 26. As per the recommendation of NAP 2020, CBSE has decided to conduct 2 board exams in class 10 for the year 25-26. As per the scheme, effective from 2026 board exam, students will be able to appear in 2 board exams in class 10 starting from 2026. अब इसमें ये है कि अभी तक हम लोगों का जो पैटर्न था वो एक एग्जाम होता था. लास्ट 2 years वी आर सीइंग दैट इन द नेम ऑफ इलेक्शन एंड जल्दी हम लोग को करना करके वी स्टार्टिंग द दिस बोर्ड एग्जाम फ्रॉम February 15th only. But before little we go back and we can see that exams are conducting in the month of March and the result somewhere in the June we used to get it. But the CBSE now starting these 2 board exams. That is first exam in February and a result will come somewhere in May. Somewhere February, March में ही आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा, and the second is in the May and result will come in the June. So these 2 exams will conduct, and इसका important ये है कि another optional improvement exam in the same year is so designed. अभी बच्चा अगर कंपार्टमेंट में आता था तो उसकी एग्जाम्स बहुत आगे जाके होती थी और रिजल्ट समवेयर इन अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये उनका साल खराब होता था. लेकिन ये अगर एग्जाम 2 एग्जाम्स आते हैं, ये 2 बोर्ड एग्जाम, तो बच्चों का साल खराब नहीं होगा एंड दे कैन ज्वाइन इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर क्लास 11. इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट. अब इसमें देखना है कि इसमें कौन से बच्चे कैसे पार्टिसिपेट होंगे. It is compulsory for all students to appear in the first exam.
and the failures only previous year can appear in the first exams. जैसे फेल्यूर वाले कौन से आएंगे, जो अभी एग्जाम हो गया है 2024-25 का बैच, सो उसमें जो कंपार्टमेंट आए, अभी कंपार्टमेंट एग्जाम लास्ट वीक में खत्म हुए हैं, इसमें भी कंपार्टमेंट अगर आता है सो दे कैन ज्वाइन इन द February. बट हमारे बच्चे जो अभी इस साल है, उन लोगों को ये फर्स्ट एग्जाम अटेंड करना जरूरी है. The second exam is however optional, but it is a must to appear in the first exam. Otherwise, she will be repeat it next year. Now the condition is what? आप जो अभी बच्चे करंट 10th में बच्चे हैं, उन लोगों को अभी ही फरवरी में ज्वाइन करना, अटेम्प्ट करना जरूरी है. अगर उनको कंपार्टमेंट आता है या वो चाहते हैं कि नहीं, मैं जो मार्क्स मुझे अभी मिले हैं वो मार्क्स को मैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो वापस से मई महीने में जो सेकंड एग्जाम होगी उसमें वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. या कोई बच्चा कहे कि नहीं, मुझे अभी मैं फरवरी में नहीं अटेम्प्ट करूंगा, मैं मई महीने में जो एग्जाम होगा उसको अटेम्प्ट करूंगा, तो ये नहीं हो सकता है. They have to attempt first exam and then they can attempt in a second board exam. Improvement opportunity. All students will be allowed to appear for improvement in 3 subjects out of science, maths, social science and language. कैसा है ये? आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को अटेंड किया और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आई कैन डू मोर बेटर देन दिस, सो यू कैन सिट in a month of May again any 3 of the subjects like social science, maths, science and 2 other languages. 2 other languages, that is depend कि आप लोग कौन से स्टेट से आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश. But they are appearing in the first exam is a must. If they have not appeared in the subject, they can appear in the subsequent year exam, not in improvement exam in the same year. This is the condition of the 2 board exams, how the children will participate. Who can appear in the second exam? Now we will see that. Students who get compartment in the first exam will be permitted to appear in the second exam and clear the compartment. Students can also improve their performance in 3 subjects in second exam. This line you have to ensure that कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट किया है और अगर एक किसी सब्जेक्ट में उनको कंपार्टमेंट आया है तो वो कंपार्टमेंट भी क्लियर, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट में बैठेगा और कोई और 2 सब्जेक्ट में उसको अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो वो बैठेगा. या फिर सभी सब्जेक्ट उसके क्लियर है लेकिन वो चाह रहा है कि अगर जैसे नीट एग्जाम में जाना है, जेई में जाना है, सो ही और शी सपोज टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस, सो ही और शी कैन अपेयर अगेन फॉर द इम्प्रूवमेंट. Students who could not appear in the first exam because of their participating in the sports. कुछ बच्चे आपके यहाँ होंगे जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल उनके टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर खेलने गए हुए हैं, तो हो सकता है कि हमारे टाइम टेबल को वो वेरी नहीं कर रहा होगा. तो वो बच्चा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, बट उनके लिए स्पेशल they can attempt in a second exam. That is a permitted. तो ये permitted किस किस के लिए है? जो बच्चे ऑफिशियल स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं. एंड सेकेंड इज CWSN स्टूडेंट्स, लाइक डिसेबल बच्चे हैं जो कि प्रॉब्लम है उनको, उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेकिन होना चाहिए, जो सीबीएसई ने हर एक जगह पे, आई नो द बॉम्बे सायन हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट फॉर द दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. तो वो सारे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ में ये बच्चे फिर से पहला अगर एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनका कोई सब्जेक्ट रह जा रहा है तो वो सेकंड एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं. इंटरनल असेसमेंट. अब इंटरनल असेसमेंट कैसे कैसे है इसमें? आपके फर्स्ट एग्जाम में ही इंटरनल आपके प्रैक्टिकल सारे जो मार्क्स आप लोगों ने अपलोड हम लोग करते हैं बिफोर स्टार्ट द एग्जाम, तो यही
कैरी करेगा सेकेंड एग्जाम में, चाहे आप इम्प्रूवमेंट के लिए अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चे या फिर वो कंपार्टमेंट है। इंटरनल का फिर से एग्जाम नहीं होगा। Exam 1, first exam in mid of February, second exam in May. Eligibility criteria. All students of class 10 who have requested attendance will take first exam in all the 5 or 6 subjects. Also repeaters of previous years in additional subjects if they want. पिछले साल यानी अभी जो 10th बोर्ड का एग्जाम अभी खत्म हुआ है वो बच्चे सेकंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कोई क्वेरी है तो बता, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। इसको अब मैं दिखूं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसको मिनिमाइज करूं। हाँ, हेलो, हाँ, हेलो। इज देयर एनी क्वेरी टिल हियर? So we will proceed. Yes, ma'am. Good evening, Seema ma'am. Good evening. Seema ma'am, Shri ma'am here from Mumbai. Okay. Shri Neela. Yes, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. Ma'am, in the main board exams, I want a slight clarification on the condition of the languages. Languages conditions still is confusion everywhere and especially in Maharashtra. So उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि when I talk in CBSE day before yesterday, तो लैंग्वेजेस के ऊपर में अभी भी काम हो रहा है और ये सब भी जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम है इस पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो इसमें मेरा अभी फिलहाल ये है कि हम पहले खाली जो क्राइटेरिया मेन है, कंफ्यूजन सबका जो मेरे पास में आया हुआ है और मेरे पेरेंट्स से आया हुआ है, दैट इज कि ये एग्जाम कैसे होगा, क्या हमारा बच्चा पहले एग्जाम में बैठेगा या सेकंड एग्जाम में बैठेगा, या हमारे बच्चे कैसे बैठेंगे, कैसे होगा। सो इट इज फर्स्ट वी हैव टू क्लियर दैट एवरी चाइल्ड हैव टू participate in a main exam, that is in the month of February, right? Second exam सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, those are in compartment or they want to improvement their marks, and the child participating in a official sports, लेकिन वो permitted होना चाहिए CBSE से, तभी उन लोगों को अटेम्प्ट किया जाएगा। जाने से पहले वो स्कूल में सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट्स वो जमा करके जाएं, दैट इज। एंड तीसरा कंडीशन, जो बच्चे CWS है, मतलब चैलेंजिंग बच्चे हैं, डिसेबल है, स्लो लर्नर है, इफ पेरेंट्स ने अगर रिक्वेस्ट किया है कि नहीं हमको थोड़ा और टाइम चाहिए इस बच्चे के साथ, हम सेकेंड एग्जाम में अटेम्प्ट कराएंगे, तो विद द कंप्लीट डॉक्यूमेंट दे सपोज टू बी सिट इन अ सेकेंड एग्जाम। These are, ये कंफ्यूजन अभी बहुत सारी जगह मैंने सुना, इसलिए ट्विंकल को रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें करके। सो दैट इज द आइडिया टुडेज दिस डिस्कशन, नीला मैम। Okay, ma'am. And what your question, that is we have to wait for some time. The discussion is going on. एंड इवन द सेकेंड एग्जाम में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि एक बार में अगर प्लस पॉइंट 2 है कि इम्प्रूवमेंट के लिए चांस मिल रहा है, और कंपार्टमेंट वाले बच्चों का साल नहीं खराब होगा अगर उन्होंने जो पहले वाले ये एग्जाम का रिजल्ट, तो दे कैन टेक एडमिशन इन 11th। ये हो सकता है जो उनका ईयर खराब जो पहले होता था वो नहीं होगा। That is the plus point. लेकिन here if we talk about the teachers, so teachers are busy in a summer vacation for first evaluation के लिए, first exam के evaluation के लिए जाएंगे, then second के लिए जाएंगे, then will declare the result, so many things are there। तो वो सोचने वाली बात हो गई है। एक पॉइंट और मेरे दिमाग में है यहाँ पे, सेकेंड एग्जाम 2 बोर्ड एग्जाम्स इज गुड, लेकिन मई मंथ जो रखा जा रहा है वो कितना समर वेकेशन में जाएगा, कितना गर्मी उस समय होगा, तो वो टाइमिंग्स कैसे होंगे, क्या बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे? सो दिस इज अ डिस्कशन पॉइंट नाउ। लेट वी मूव।
Yeah, and ma'am, previous year का जो वो है essential repeat, मतलब failure, वो फर्स्ट एग्जाम मेन एग्जाम दे सकता है. हाँ जी. हाँ, और इसमें भी अगर if he has got a compartment, then again he can sit for the May Second exam. attempt, May exam. Yes. Previous year वाला भी. हाँ जी, तो वो उसका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा. हाँ. 2 बार CBSE give twice chance ना? I think so, if I am not wrong. Yes, Okay. it is twice. Twice. Syllabus completion and result. Syllabus completion का मैं आप लोगों को मेरा एक एग्जांपल देना चाहूंगी. My teachers are there in a group now. Last year we faced that हम लोग को टाइम कम मिला हम लोगों को प्रीलियम्स करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, रेमेडियल्स के लिए, एंड एग्जाम वाज स्टार्टेड फ्रॉम 17th of February. सो हम लोगों ने अप्रैल में ही ये डिसाइड कर लिया था दिस ईयर, क्योंकि क्या होता है, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, ऑल द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स आल्सो एंड जैन सर. हम लोगों का दिसंबर महीना टोटली जाता है एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, देन उसके बाद में पिकनिक, और फिर एक्समस के हॉलीडेज आ जाते हैं. महाराष्ट्र में तो कम मिलता है, बट अदर स्टेट्स में ज्यादा दिन का मिलता है. समर विंटर वेकेशन भी हो जाता है और एक्समस की होती है. तो हमारा दिसंबर में एकेडमिक का लॉस बहुत सारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो यू करेक्ट मी. तो उसको ध्यान में रखते हुए आई इंस्ट्रक्टेड व्हेन वी आर स्टार्टेड मेकिंग द सिलेबस ब्रेकअप इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो उसी समय हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, एंड इट वाज माय एडवाइस टू माय टीचर्स कि आप सिलेबस ब्रेकअप ऐसा बनाइए 10th का और 12th का कि हम लोग 30th नवंबर तक कंप्लीट कर लें. ऑल चैप्टर्स पढ़ाना एक बार कंप्लीट हम लोग कर लें, और फिर उसके बाद में हम लोग प्रीलियम्स के लिए और रेमेडियल्स के लिए और फिर बाकी चीजों के लिए हमें जनवरी पूरा मिलता है एंड मिड ऑफ फरवरी मिलता है हम लोगों को. सो दैट इज कि अगर आप लोग भी इसी तरीके से करें तो भगा के उन लोगों का प्रीलियम्स लेना, उन लोगों का रिवीजन कराना, ये नहीं होगा. बड़ा स्मूथली चलेगा हमारा सारा काम. That is my idea. So if you want to continue आप उसको ले सकते हो. Now the syllabus completion में या अपने उस पे आती हूँ. All these exams will be done on the syllabus and scheme of studies prescribed by CBSE. Result of first exam in April, result of second exam in June, as per the exam bylaws of CBSE. जो हमारा प्रीवियस 2 साल पहले यही हमारा था कि हम लोग के एग्जाम्स होते थे मार्च में और अप्रैल मिड में जाके खत्म होते थे, एंड द रिजल्ट डिक्लेयर बाय जून. सो रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल इन DG Locker. Mark sheet, certificates, migration certificates, etc. after declaration of second exam result for both the exams. So this is an important line. मार्कशीट आपको DG Locker से आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, आप पास हैं फेल है वो आपको मालूम पड़ जाएगा. बट जो एक्चुअल आप लोगों को मिलेगा मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दिस ऑल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड रिजल्ट. So but in between you can take the child can take admission in 11th standard. Post result facilities like photocopies, verifications, still etc. will be allowed after second exam. Principals are required to inform parents of changes in the exam system of CBSE. Who can attempt second exams? I think I already we discussed this. Provisional admissions to class 11th will be permitted after result in first exam. Times be confirmed after the result of second exam. Please remember, candidates' appearance in the first exam is a must. No addition of new candidates and subjects in the second exam. This innovation has been adopted by CBSE in the interest of students and to help them in saving their 1 year and also to provide them the opportunity to improve their performance in 10th board exam in the same year.
नहीं तो हम लोग को 1 साल वेट करना होता था, ये 1 साल हमारा सेव हो रहा है। ये अगर हम लेकर आते हैं, सीबीएसई इसको और कंफर्म करती है, तो दिस इज अ गुड फॉर द स्टूडेंट. Now summary of this all this. CBSE will conduct 2 board exams in class 10, very effective from 2026 in 5 subjects. Exam 1, mid-February, result in April. Exam 2, May, result in June. Exam 1 compulsory for all 10th students, also for last year's compartment failures and those who change subjects. Now, those who change the subjects means what here? If the first exam child is taking maths base, बट उसको सेकेंड में इम्प्रूव करने के लिए अगर वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन ये चेंज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो फरवरी में मेन एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं. ऐसे ही लोग बाकी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश के लिए कम्युनिकेशन इंग्लिश है, लिटरेचर इंग्लिश है, तो उसको बच्चों को अगर चेंज करना है तो वो सेकेंड एग्जाम में चेंज कर सकते हैं. Exam 2 for current year compartments for improving performance in 3 subjects maximum. Official sports students, CWSN candidates, जो हमने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेकेंड में ये 2 ही बच्चों को अलाउड है. Internal assessment before exam 1 applicable for both exams. Result, mark sheet, certificate, migration will be issued after the exam 2. Provisional admission in 11, class 11 permitted after exam 1 to be confirmed after exam 2 result. And issue of mark sheet etc. via DigiLocker. So I finished here my this screen को change कर दो. Now some questions are with me which my parents only asked me. So ट्विंकल हम पहले ओपन सेशन करें या जो मेरे पास क्वेश्चंस मेरे पेरेंट्स के रखे हैं वो हम करें? As you decide, Seema ji, you decide as you want to go, na? Okay. Yeah. पहले it's better कि पहले क्वेश्चंस करना है, बाद में then we can do open session. You decide. Okay, fine. You decide. इन लोगों की क्वेरी भी अगर होगी तो वो क्लियर हो जाएगी. Fine. कंपार्टमेंट कैन चाइल्ड ज्वाइन द स्कूल. हाँ, उनका कहना है कि जो बच्चों को कंपार्टमेंट आता है तो इस बीच में सेकेंड एग्जाम और कंपार्टमेंट फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट के बीच में जो टाइम हम लोगों को मिल रहा है 1 महीना 1.5 महीना, क्या बच्चे स्कूल आ सकते हैं क्या? सो माय आंसर इज डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल. हम उनको हमारे रेगुलर बच्चों के साथ पे तो बैठाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा 9th स्टैंडर्ड पास करके 10th में आ चुका होगा उस वक्त. तो बच्चों को टाइम अलग करके बुलाएं या उनके लिए एक अलग क्लासरूम ओपन करके उनके जो कंफ्यूजन्स है या उनको जहाँ रेमेडियल चाहिए दैट वी कैन प्रोवाइड. और ये अगर हम करते हैं तो हमारे स्कूल का नाम ही होता है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं. सो यस, we can allow them to come in the school for 1 hour, 2 hour according their subject. We can plan according उनके कौन से सब्जेक्ट के ऊपर उनको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आई है, तो ये हम उन लोगों को बुला के ये एक प्रोविजन हम उन लोगों को दे सकते हैं. और ये गुड आइडिया, इस आइडिया इज गुड एंड आई थिंक कि हमारे स्कूल का नाम होगा, पेरेंट्स के बीच में हम लोग पॉपुलर हो सकते हैं कि हमारे बच्चों को ये स्कूल इतना बेनिफिट देता है, हेल्प करता है. एंड माई टीचर्स, अगर यहाँ पे आई डू नॉट नो मोरिया सर इधर है या नहीं, वो तो बिल्कुल सबकी गर्दन पकड़ के बैठाते हैं. एंड ही वुड बी हैप्पी कि अगर मैं बोलूं कि मोरिया सर आपको 10th के बच्चों को लेके बैठना है मैथ्स, सो ही वुड बी रेडी एनी टाइम, दिन हो, रात हो, सुबह हो, कोई भी टाइम हो. सो हम लोग हमेशा मोरिया सर को याद करते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई पेरेंट. सो आई थिंक इट इज प्रिंसिपल लुकआउट कि वो कैसे इसको अरेंज करेगी. तो अभी एक ही क्वेश्चन मेरे पास आया है. सो नाउ ओपन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर. आई थिंक ऑल अंडरस्टैंड. ट्विंकल मैंने बताया था ना, श्री नीला मैम,
Or Yeah. Yes, yes, you told me. न्यू होराइजन स्कूल एरोली में है मैम. Okay. एंड आई थिंक मैम सागर भी है शायद यहाँ आज. Okay. सो एनी क्वेश्चंस? हम लोग कुछ और डिस्कस कर सकते हैं. शेख सर, इफ आई एम कहीं मैंने गलत कुछ बोला होगा तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं. जैन सर. Thank you, madam. It was a nice lecture. I think all the points have been cleared very nicely. जो changes CBSE से आएंगे, I think we should wait for it. There may be some changes in the dates actually. क्योंकि गर्मी बहुत हो जाएगी, जून में टीचर्स को परेशानी होगी. लेकिन वो अगर 8 वीक की अगर एग्जाम सरकार है फरवरी का, if they start by 10th of February, I think the problem can be solved. So let us wait for the final decision by the government. कुछ दिनों में that is discussion is going on about this summer vacation. कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा हीट होता है, तो how they will come the student. Yeah, some question is there. I could not. मैं पढ़ने. Seema ji, yeah, someone is writing. What about Marathi subject? मराठी का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं. I don't want to take a name of Uddhav Thackeray and Raj Thackeray. No, she want to ask, will it be conducted by a school or board? No, that it is is so by bad. school. It is by school, and the school will provide the marks. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपने देखिए, मराठी का ऐसा है कि आपका पहला लैंग्वेज है A, that is English. सेकंड B is a हिंदी. एंड थर्ड लैंग्वेज हम लोगों ने पिछले 2 साल से शुरू किया है 9th and 10th के लिए. बट उसका बोर्ड एग्जाम में थर्ड लैंग्वेज, मैं यहाँ मराठी या फारसी या गुजराती के बारे में नहीं बोलूंगी, हम थर्ड लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे. तो थर्ड लैंग्वेज का एग्जाम कंडक्ट होता है स्कूल में ही. हमारे टीचर ही कंडक्ट करेंगे, उनका ही क्वेश्चन मार्क्स होगा, वही आंसर पेपर चेक करेंगे. एंड इट विल स्कूल से ही उनको मार्कशीट जब दी जाएगी बच्चों को, तो ये ऐड करके उनको सर्टिफाइड किया. उसके लिए Same goes, Seema ma'am. Same goes for if they are taking Marathi, so we have to take Hindi, right? Yeah. Right, no? Right. The Hindi has to be taken in school, Yes. and that marks we have to give it. Right. So the CBSE rule is different for Maharashtra and different for rest of the country. Is it like that? No, rest of the not country. Earlier it was somewhere 90s, 80s. सब जगह हर एक स्टेट वाइज होता था. Okay. लेकिन मेरे ख्याल से 2000 में ही ये चेंज हुआ है कि सीबीएसई का सिलेबस और करिकुलम पूरे इंडिया में एक है. So बच्चा One board, कहीं they are now starting a one board, na? One board and something like that. One board in what sense you are And saying? madam, up now CBSE will be applicable all over the country. This is there, na? Yeah. Yeah. अभी so- केवीएस से बच्चा कहीं ट्रांसफर होके जाता है तो उसको कुछ भी चेंज नहीं करना होता सिवाय बस. Yes, yes, yes. बस फैसिलिटी खाली चेंज होगी उस बच्चे की, अदरवाइज रेस्ट ऑल द थिंग्स इज सेम. Someone is writing, will Marathi be considered in top 5 subject? I said ना कि आपको 2 लैंग्वेज लेना है. So the school will decide which 2 languages. Here I can't recall the name of Marathi, name of Gujarati. आप कुछ भी लीजिए, 2 लैंग्वेज कंपलसरी है. तो अगर उसमें मराठी आता है तो आप यू कंटिन्यू. And Marathi marks will be reflected on board result? Someone is asking. वही बात वही हो गई है कि आपको 2 लैंग्वेज लेने. लेट मी क्लियर, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ. हमारे 3 सब्जेक्ट्स मेन है, मेजर सब्जेक्ट, दैट इज मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस. उसके साथ में आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी है. अब आपका स्कूल 2 लैंग्वेज कौन सी ले रहा है ये आपको देखना है, और बोर्ड उसी 2 लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देगी और उसके रिजल्ट वहां से आएंगे. लेकिन जो आपके यहाँ थर्ड लैंग्वेज स्टार्ट किया गया है लास्ट 2 years,
उसकी एग्जाम आपकी स्कूल में ही कंडक्ट होगी, वो बोर्ड नहीं देगा उसका, बोर्ड से आपको क्वेश्चन पेपर भी नहीं आएंगे। क्लियर नाउ? तो यहाँ पे मराठी बोलने से नहीं होगा या मैं कुछ और लैंग्वेज बोलने से नहीं होगा, यहाँ It थर्ड can be लैंग्वेज। considered as third language, है ना? You want to say third language. Someone is writing, will we get our percentage of first board exam in April or after second exam? April. First, yeah. After second exam. You can see the DigiLocker and the rest of the things you will get in second exam June में। आप बच्चों को बुला के माइग्रेशन और मार्कशीट ये सारे आप दे सकते हैं पर्सनली बुला करके, दैट इज इन द डिक्लेरेशन ऑफ जून रिजल्ट। Any questions? Jacqueline, you are finished? You have done? You are good. I'm with you only. That's all. Mr. Sumit Panda is writing, which marks will be considered, first or second? Which is the best? So which one is the best? It will be considered. Okay. Because second exam we are conducting as a improvement, na? तो सेकंड देना सबको मस्ट हो गया नहीं? दे हैव द ऑप्शन, दे वांट, जो इनको चाहिए। someone, Astha is writing, will you please tell us about second exam in short again? Short means Again, as we joined late, they have joined late, so they want some summarization of your presentation. summarization I can show. Pratik, Ajam, Pratik. Summarization जहाँ है वो स्क्रीन निकालना। Somebody mic is on. Yeah. It is visible? Yes, it is. Yeah. CBSE will conduct 2 board exams in class 10th. It is effective 2026 in 5 subjects. Exam 1 mid-February, result in April. Exam 2 May, result in June. Exam 1 compulsory for all 10 students. Also for last year's compartment failures, they can also join there. And those who change subjects. अब एग्जाम 2 के लिए ये है कि करंट ईयर कंपार्टमेंट फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन 3 सब्जेक्ट्स मैक्स, ऑफिशियल स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, CWSN कैंडिडेट्स। नाउ द ऑफिशियल स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स मीन्स अगर आपके टाइम टेबल के साथ में फर्स्ट एग्जाम के समय आपके टाइम टेबल के साथ कोई बच्चा नेशनल लेवल पे खेलने जा रहा है, इंटरनेशनल और नेशनल, तो डॉक्यूमेंट्स स्कूल में जमा करा के वो जा सकता है। अटेम्प्ट नहीं भी किया तो सेकंड एग्जाम को वो अटेम्प्ट कर सकता है। नाउ CWSN कैंडिडेट मीन्स द चैलेंजिंग स्टूडेंट, स्लो लर्नर, ऐसे बच्चे, इन लोगों को भी अगर पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग को और टाइम चाहिए एंड माय चाइल्ड विल बी अटेम्प्ट सेकंड एग्जाम, so for example in Mumbai and for Maharashtra, Sion Hospital give the certificate for these children. That certificates we have to submit for the CBSE. इनके नाम से वो अपलोड होगा सर्टिफिकेट कि दिस इज अ चैलेंजिंग चाइल्ड और स्लो लर्नर, जो भी डिसेबल है इस तरीके के लिए। तो इनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं भी किया तो इनको सेकंड अटेम्प्ट के लिए परमिशन है, लेकिन रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट एंड अगर उसका जो रिजल्ट आता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल और उनको बच्चों को और पेरेंट्स को लगता है कि ये और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो किसी 3 सब्जेक्ट में कर सकता है, नॉट ऑल 5 सब्जेक्ट्स और 6 सब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर? इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए होगा, एप्लीकेबल फॉर बोथ एग्जाम्स, रिजल्ट, मार्कशीट
certificates migration will be issued after the exam 2. लेकिन in between provisional admissions for 11 आप लोग ले सकते हैं, आप बच्चे ले सकते हैं. Confirm after exam 2 result. Exam 1 to be confirmed after exam 2 result. And issue of mark sheet etc. via DigiLocker, वो parents लोगों को मिल जाता है and they can see that. Then वापस उसके बाद प्रतीक स्क्रीन पे या जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वो लेट ज्वाइन हुए हैं, सो इज दैट क्लियर? Seema ji, someone is writing ki if we will get the result in the month of June, then how we will decide whether to give second exam or not? नहीं, फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट तो अप्रैल में ही है. They have some confusion, that's why she was asking. See, again I am repeating, the first exam in the mid of the February and result will get in the month of April. And here if you find that you can go for the improvement any 3 subject, not all. आप सारे में पास है, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अगर अटेम्प्ट होना है तो आप किसी 3 सब्जेक्ट में आप अटेम्प्ट हो सकते हैं. क्लियर? Right. And please unmute yourself. If someone want to ask a question, please unmute yourself. Chat box में बहुत confusion हो रहा है. Someone is writing and better open your mic and video and talk. Yeah, please unmute yourself and you can ask the question. Dr. Rashmi is asking, what about May month vacation? May month vacation for other classes 1 to 9. And the teachers of 1 to 9, not 10th. In the beginning only I said that कि बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, सिर्फ टीचर्स के लिए रहेगा. And teachers those are going for the evaluation. सारे टीचर नहीं जाते हैं, कुछ टीचर्स जाते हैं, तो उनका तो समर वेकेशन गया. But we can plan for June for them for few days. Asha ji is writing, if someone doesn't want to give second exam, which month are we allowed to take admission for 11th? Same day, April. Once you get the result. After the result, huh? Yes, yes. After the result in the month of April, you can go for the admission. That I said now. Provisional. Everybody, you can unmute yourself. Otherwise, I have to read the question and tell Seema ji. Yeah, बहुत fast निकल जा रहा है. Not able to read. वो ही ना वो questions बहुत. Sachin ji is writing, if we score better in the first exam and less in the second, the best one will be chosen. Sachin Board ji, will choose the best. दोनों एग्जाम में से जिसमें मार्क्स अच्छे हैं वो उसका रिजल्ट बनेगा. इसलिए आप लोगों को जो पेरेंट्स लोगों को, सॉरी बार बार आप लोग कह रहे हो रही हो, बच्चों को जो रिजल्ट और मार्कशीट, माइग्रेशन, ये सब जो दिया जाएगा फिजिकली, वो सेकंड एग्जाम के बाद ही दिया जाएगा. Kanchan ji is asking, if a child is sick, cannot attend first exam, then can she give a compartment exam? Next year. Next year. Okay. And they have to pay extra charges for the second exam? Pranav is writing. Yes, they have to pay. Okay. See, the second exams are allowed. Again, I'm repeating, क्योंकि confusion यही सबको है कि second exam कौन attempt करेगा. Second exam वही attempt करेगा जो बच्चों को लगता है कि first exam में उनको या तो compartment आया है या फिर उनके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं इम्प्रूवमेंट वाले, तो वो सेकेंड एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा. सेकेंड, जो बच्चे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें चाहिए होंगे अकॉर्डिंग, वो आप स्कूल में जमा कराएंगे और स्कूल अपलोड करेगी CBSE. सो दैट चाइल्ड वुड बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम 2. फर्स्ट नहीं भी अटेंड किया तो सेकेंड एग्जाम में वो अटेम्प्ट हो सकते हैं. थर्ड हो सकता है चैलेंजिंग चिल्ड्रन, डिसेबल चिल्ड्रन और द स्लो लर्नर. ऐसे बच्चे
जो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ सकती है कि हमें ये बच्चों को सेकेंड अटेम्प्ट में पढ़ाना, एग्जाम देना है, फर्स्ट नहीं कर पाएंगे तो वो सेकेंड में डायरेक्टली अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे मुंबई में महाराष्ट्र के लिए सायन हॉस्पिटल दिया हुआ है, वहां से आपको सर्टिफिकेट लाना होगा और स्कूल में जमा कराना होगा। तो अगर आप किसी बाहर दूसरे स्टेट से यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, जैसे गुजरात है या कोई और है, गोवा है, तो ये लोग, आप लोगों को पता करना है कि सीबीएसई ने कौन सा हॉस्पिटल को चूज किया हुआ है। ये आपको वहाँ के आरओ ऑफिस से मालूम पड़ जाएगा। Sunita ji is writing, if satisfied by first exam, then can we join college for admission? Yeah, it's a provisional admission. You will get there. मैम जून का रिजल्ट कब निकलेगा? जून में निकलेगा, मिड ऑफ जून तक। मई का रिजल्ट जून में आएगा। जून में तो आप बता रहे ना, जून में तो एग्जाम होंगे। नहीं, एग्जाम्स मई महीने में है एंड रिजल्ट यू विल गेट मिड ऑफ जून। ओके ओके। उसके बाद भी हम लोग कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, कि अप्रैल के रिजल्ट के बाद ही हमें अप्लाई करना आप अप्रैल में भी कर सकते हो अगर आपका बच्चा पास हो गया है तो। और फिर वेट करो कि कॉलेजेस जुलाई में शुरू हो जाए। इसमें कैसा होता है कि अभी तक के का रिजल्ट जून में आता था, जुलाई में आता था, बच्चे जाके एडमिशन लेके अगस्त में क्लासेस चालू होती थी। बट दिस ईयर सी वी स्टार्टेड आवर 11th स्टैंडर्ड 9th of June we started, July, sorry. So ये बच्चों का ये टाइम, जो सिलेबस के लिए जो डेज है वो हमारे कंप्लीट हम लोगों को मिल जाएंगे। सो 11th आपका अप्रैल में भी ले सकते हो प्रोविजन एडमिशन, और जून में तो फिर आपको लेना ही लेना है। मिस्टर सुमित पांडे, अप्रैल में मैम प्रोविजनल लेना ही है कि जून में ले सकते हैं, कि पहले लेना ही है अप्रैल में? इट इज योर चॉइस। आपकी चॉइस है ये। ओके मैम, थैंक यू। Yeah, Sumit ji is writing, if a child doesn't attempt second exam even after filling the form for the second exam, then Best. then the first exam result will be applicable, na? Yeah. Sumit ji, any other query? शेख सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। I'm there with you, listening to you. Your sweet voice. हाँ, वारी जाए आप पे तो। Yes. So, Mr. any more questions? Yeah, Mr. Pranav is writing, what about the holidays that are given before the board exams? हॉलीडेज, अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपकी हॉलीडेज अपना शुरू हो गई है फरवरी से, वंस द एग्जाम्स गेट ओवर, मार्च। Asha ji, you can unmute yourself because there are so many questions. Now I have to. Asha ji is writing. Syllabus, somebody is writing about the syllabus. That is really it is important, क्योंकि आप लोग कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, but in my school we complete our syllabus by 30th of November. Because December month is really what I find every time कि हमारा एनुअल डे आ गया, स्पोर्ट्स डे आ गया, देन पिकनिक्स आ गए, पिकनिक के बाद छुट्टियां आ गई, फिर एक्समस की छुट्टियां आ गई। सो उसके जनवरी फिर हमारा प्रॉब्लम आता है। तो बेटर है कि हम लोग 30th नवंबर तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हमारे सिलेबस को कंप्लीट करें, और भगा भगा के नहीं करें, आराम स्मूथली अगर हमारे बच्चों को लेके चलना है, क्योंकि हमारे यहाँ वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो वी हैव टू कैरी ऑल द स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक आइडिया और यहाँ देना चाहूंगी एज अ ट्रेनर ऑफ टीचर्स। सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, व्हेन वी स्टार्ट द रेमेडियल एंड दिस ऑल रिविजन्स एंड दिस ऑल, तो हम लोग ना 3 कैटेगरी में बच्चों को बांट देते हैं।
क्योंकि अगर कोई बच्चा ब्रिलियंट है तो उसके लिए ये रेमेडियल्स की जो पीरियड्स लगते हैं इज अ नॉट यूज वर्थ, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो बेटर है कि हम लोग 3 पार्ट में बच्चों को बांटते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। तो ए ग्रेड के बच्चों को हम लोग काम करने के लिए दे देते हैं और एक टीचर वहाँ सुपरविजन के लिए होती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, जो दिया है वो कर रहे हैं या नहीं, शोर तो नहीं मचा रहे। बी ग्रेड में पहले टीचर जाएगी, जो चैप्टर्स या जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करके चाहिए दैट शी विल क्लियर। और ये 1 आवर का पीरियड लगाते हैं हम लोग हर एक सब्जेक्ट का। तो 5 घंटे का स्कूल, 5 सब्जेक्ट के लिए 1 आवर। तो पहला 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टीचर विल टीच और शी विल डू द रिविजन, क्लियर द कॉन्सेप्ट, दिस ऑल शी विल डू एंड शी विल गिव द वर्क एंड द स्टूडेंट्स विल डू देयर ओन वर्क। सी कैटेगरी में तो 1 घंटा पूरा पढ़ाएगी और दूसरे दिन उसका कोई अगर रेमेडियल है या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो पूरा उनका उसके। तो ये हम लोग हर साल, आई थिंक हम लोग लास्ट 5 ईयर से ये कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑल्सो। सो दिस इज आइडिया जैन सर का, मेरा नहीं है। सो इट इज वर्किंग। Ma'am, you spoke something about completion of your portion by 31st of, let's say 30th of November. Yeah. So when do you start your session for grade 10 and 12? यहाँ नहीं बोलते सर। बट आई स्टार्ट, देखिए क्या होता है सर कि आपका मैथमेटिक्स और कुछ सब्जेक्ट जो आपने 9th में पढ़ाए हैं वो आगे कंटिन्यू होते हैं 10th में। तो बच्चे ने अगर 9th में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग मार्च में एग्जाम होके फरवरी जब हमारा 10th का एग्जाम चल रहा है उसी पीरियड में हम लोग स्कूल में 9th का एग्जाम ले लेते हैं। अकॉर्डिंग दैट हम लोग बच्चे फिर हमारे मार्च में आ जाते हैं 10th में। तो 1 वीक वी कीप द रिविजन ऑफ द 9th ओनली। तो बच्चों को हम वहां पे उनको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे मैथ्स में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या बायोलॉजी में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है या फिजिक्स में नहीं है, तो हमारे टीचर्स वो 1 वीक का हमारा जो लेसन प्लान बनता है दैट इज 1 वीक 10 days, इट इज अकॉर्डिंग कि टीचर्स को जितना टाइम चाहिए बच्चों को 9th स्टैंडर्ड का रिविजन करा ले। एक बार वो रिवीजन पक्का हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बोरिया सर अगर यहाँ प्रेजेंट है तो उनकी हमेशा शिकायत होती है कि वो कोई 3 फॉर्मूला मैथमेटिक्स का है वो बच्चे बोलते ही नहीं है, रटते ही नहीं है, उस पर काम ही नहीं करते, ये उनकी शिकायत हमेशा चलती रहती है। आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर इसलिए मुझे वो फॉर्मूला नहीं पता, बट उनके ये डायलॉग्स आते रहते हैं। सो फॉर दैट we first when we start the school, by the time क्योंकि सब बच्चे at a time books खरीद नहीं पाते हैं, वो सारे भी प्रॉब्लम्स होती है, तो we start the revision with the 9th standard और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं and then we start the actual lessons and actual उनके सिलेबस को। तो by the time हमारा सिलेबस 30th नवंबर तक खत्म हो जाएगा। You are unmuted, Twinkle. Maximum holidays for each exam, someone is asking. As per the CBSE and जो जैन सर ने हम लोग को ट्रेनिंग करी है तो 2 एग्जाम के बीच में 35 डेज तो मिनिमम होना चाहिए। तो आजकल तो 4 इवेल्यूशन है, अभी हमारा इवेल्यूशन खत्म हुआ है एंड द सेकेंड एग्जाम हमारा हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के बाद समवेयर बिफोर दिसंबर के मिड में हमारा 3rd इवेल्यूशन होगा and the final in the month of March. Only 9th standard and 11th standard का final exam हमारा बोर्ड एग्जाम के साथ ही चलता है ताकि हम लोग समय से सिलेबस को कंप्लीट करें, इसलिए उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है। उनको बीच में 1 वीक का हम लोग हॉलीडे देते हैं और उसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि टीचर्स ने मैनुअल्स लिखना, लेसन प्लान लिखना जरूरी होता है। दे शुड डू द सिलेबस का ब्रेकअप बनाना है, फिर उनको लेसन प्लान बनाना है। फिर टीचर्स के पीछे मेरा भी एक डंडा रहता है कि लास्ट ईयर आपने जैसे पढ़ाया उसमें और क्या इम्प्रूव कर सकती हो, सो मेक इट नाउ इन योर लेसन प्लान कि ये टॉपिक मैं इसको और अच्छे से पढ़ा सकती थी, तो वो आप याद करो और उसको करो। इट इज दैट। Sunita ji is writing, when will the preparation leave will start for the board exams? मैम ये तो स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे करोगे आपकी स्कूल की प्लानिंग। मैंने तो अपने स्कूल की बता दिया कि मैं 30th नवंबर को मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
एंड दिसंबर 1 वीक या 2 वीक हमको मिलते हैं शुरू के, तो उसमें अगर कोई चैप्टर्स रह गए हैं या कोई टॉपिक रह गया या प्रैक्टिकल्स रह गए हैं तो वो हम लोग कंप्लीट करा लेंगे. एंड जनवरी इज अ रेमेडियल एंड द प्रीलिम्स साइमल्टेनियसली वो चलते हैं हमारे. तो आप भी वैसे ही प्लान कर सकते हो. Neha ji is writing, what are the maximum days to prepare for our board exam? What? For a board exam, how many days to prepare for the, I think she's a student, Neha. She is writing, what are the maximum days to prepare for the board exam? That कितने is दिन up to you, बेटा. आपकी प्रिंसिपल, आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे. It depends on person to person also, na, how many days it takes. That's something students to student. Yeah, exactly. It depend on. Asha ji is writing, as we know that our kids are not having board exam of Sanskrit, then is it necessary to study, because somewhere it consumes time for the students? Sanskrit. Better you, I think this is teacher, not principal. ऐसे questions नहीं पूछती है. So connect with your principal. आपका टाइम टेबल कैसा है मुझे नहीं पता, तो आप अपने प्रिंसिपल से बात करें. नहीं तो she is saying कि संस्कृत पढ़ाना, is it necessary if it's not coming in the board exam? कई बच्चों ने सेकेंड लैंग्वेज लिया है संस्कृत, जिन्होंने लिया है उनको पढ़ना है. Okay. Any other questions, or are we done with the questions now? I think we're Dr. done. Jacqueline, any questions from your side? No. No questions. Yeah. I have my guru See, only I'm sitting here. repeating again. You are the principal, you know everything. My guru is sitting here. So what? My two gurus are sitting here. One is Seema ma'am, one is Hemant sir. Okay. And Okay. That's And Jain great. sir is all सबका gurus. Yeah. इसलिए तो जैन सर को भीष्म पितामह बोलते हैं हम लोग. I think Seema ji, we are done with the thing. Anybody wants to add something, or Again, I'm repeating the same question is coming, Sarika Soni ji. if I do Sanskrit not is a know third she is subject? a student or a teacher or principal. I'm repeating again. आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मेन सब्जेक्ट के साथ 2 लैंग्वेज लेना है. अब 2 लैंग्वेज में अगर संस्कृत है तो आप अपने स्कूल में उसको पढ़ाने का कंटिन्यू करिए, तो आपके क्वेश्चन पेपर संस्कृत के आएंगे. अगर आपने 3rd लैंग्वेज लिया है तो वो नहीं आएगा, आपको स्कूल में ही एग्जाम कंडक्ट करना है. अब 3rd लैंग्वेज में आपके स्कूल में आपने क्या रखा है, मराठी रखा है, संस्कृत रखा है, या आपने और कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेजेस भी है, वो अगर आपने एज अ 3rd लैंग्वेज रखा है तो उसको बोर्ड एग्जाम नहीं है. इवन फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो देयर ना, सो इफ दैट इज 3rd लैंग्वेज तो बोर्ड में नहीं आएगा. मैम बट बोलो कि उनको स्कूल में लेना है, नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं लेना है और छोड़ देंगे. स्कूल लेवल पे लेना है वो. और भी ज्यादा क्वेश्चंस है तो कॉल मी इन योर स्कूल फॉर ट्रेनिंग. ओके. I think we are done with the question, Seema ji. Manju ji, you want to ask something? यस मैम, मैं हिंदी पूछ रही थी, हिंदी रहेगा क्या मैम? मैडम, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में जब रजिस्ट्रेशन किया है तो आपने जो 2 लैंग्वेज आपने फर्स्ट लिए हैं, लैंग्वेज ए, लैंग्वेज बी, इट इज एनीथिंग, तो वो आपको तो कंपलसरी बोर्ड एग्जाम आएंगे ही. ओके मिस. ओके, या, थैंक यू मैम. वेलकम. I think Seema ji, we have answered all the questions. Mostly, I hope so. Thank you very Thank much you everyone for such an interactive discussion, panel discussion. Anybody wants to add something, please add. Dr. Jacqueline, last few words from your side before ending the panels and discussion. I can only say she's always the best and the webinar was Yeah, good. Seema ji. No, she will so speak only if you want to add few lines. Jain sir. Thank you. It was a nice lecture. Thanks, Twinkle Madam, for organizing this webinar. सर आपका पेज तो दिखाइए एक बार. Neha ji wants to see Dr. Mr. Jain. Yeah.
Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, Good everybody. evening. सीमा जी वो न्यू होराइजन से मैम आप सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम Srinila. Madam Yeah, Srinila. you want to add something? No, not at all. I have understood everything. मैम आप सबको जब बताते हो आप क्या अंडरस्टूड करोगे? हाँ नहीं वो that's the same thing I want to say. You want to add something? I'm We not go saying. as a IT कमेटी जाते हैं वो तो उनको क्या हम लोग बताएंगे? नहीं है, वही। ऐसा नहीं है. There is learning in every corner and from everybody. ऐसा कुछ नहीं है. But there are more experienced people and more people with more wisdom in this group. मैं जैन सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. So nice to meet Yes, you. yes, Yeah. yes. आप कहाँ पर हैं? मैं न्यू होराइजन स्कॉलर स्कूल में हूँ प्रिंसिपल. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. सर yes. रीतू की तभी प्रिंसिपल तो है. Nice. तभी तो आपको हाँ डैडी बोल रही हूँ. ऋतु आपके स्कूल में है. तभी तो आपको डैडी जी बोल रही हूँ. लेट मी क्लियर, जैन सर की सबसे छोटी बहू मैडम के साथ वाइस प्रिंसिपल है. Okay, that's great. That's great. Seema ji, I think Pranam we, sir, Pranam Naidu ma'am, very nice session. Clotilda Baptista from Tapovan here. Yeah, Koti ma'am, namaste. My Tapovan group. I think all principals are there. Almost. Okay. We are all teachers from Bhinder, everybody is there. Okay. Good. हाँ, तुम तो अपनी शक्ल दिखाओ. कितने दिन हो गए तुम्हें देख के? वाओ. सर नेहा है यहाँ. नेहा कोटी हाँ मैम. yes. Good evening, sir. Good evening. Thank you. उतनी energetic जैसे पहले थे. So nice to meet you here. Same here, sir. Same here. Nice to see you. नेहा, हम लोग परसों सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 92 Surely. में आएंगे सर. Wow, wonderful. Live long, sir. Live long. Yes, we sir. need your guidance and blessing. Let me introduce Neela ma'am and Jacqueline. Kotilda madam hai. Tapovan Vidyalaya, we have 5 branches last so many years and 2 new branches introduced this year. okay. So 3 branches in Mumbai and rest all in Gujarat, Ahmedabad, Navsari, Jamnagar, and this year Surat. That's great. And Kotilda madam is founder principal, right, ma'am? Okay. Yes. Okay. She is in Seema ji, Bengal branch. yeah. I think we are done with the question and answers and introduction is also done now. Neha Thank and you, thanks Koti a ma'am, lot. it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very crystal clear. Yes. Thank you very much. Thank you everyone Thank you for for your joining us. time. Thank you. निकाला यहाँ थे. Thank you. Neha ji has a question. Will IT come in the boards? Neha is asking. Yes, वो तो है ही. जिन्होंने लिया वो आएगा ही. But these 6 subjects, these 5 subjects are compulsory. Math, science, and 2 languages and social science. बाद में आपने हॉबी जो भी सब्जेक्ट्स लिए वो तो है ही है. Okay, fine. Thank you everyone for joining us. Thank you. Thank you, Ahmed sir. Thank you. God bless. Thank Take you. care. Thank you, sir. Thank you. Thank you. प्रतीक Thank you. कहाँ पे?